Hello. Now we will discuss about the trigonometric ratios of some specific angles. So first we are going to discuss the trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree angle. What will be the value of the 30 and 60 degree angle for the trigonometric ratios? So for that हमें क्या लेना है? Just you are supposed to take a equilateral triangle. PQR we are taking an equilateral triangle. Equilateral triangle means all the sides are equal, सभी side equal भी, and all the angles are 60. So what we will do from here only, we are supposed to draw the perpendicular. Just draw the perpendicular here. So PM is the perpendicular. So this PM will divide. PM क्या करेगा? ये perpendicular will divide this QR into two equal parts. So this will be A by 2 and this is also A by 2 because we are taking this side is A. Because it is an equilateral है तो यहाँ से perpendicular गिराएंगे तो it will divide the this one two equal parts. Now by using the Pythagoras, see now this is your 90 degree angle, this is your 60. So what about this one? This will be the 30 degrees there because sum of these three angle is always 180. अब क्या करना है? इस triangle PMQ में you know this QM, you know this PQ, but we don't know PM. So you have to calculate the PM first. पहले PM निकालिए by the Pythagoras. तो देखिए just in triangle PMQ you can apply the Pythagoras. PQ square is equal to PM square plus QM square by Pythagoras theorem. So this is PQ is already we know that is A. PM we want to find out and QM is already A by 2. क्योंकि इक्विलर ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट. So this is A by 2 whole square. So you are getting A square. This is your PM square. A by 2 whole square means A square by 4. You can transpose. So PM square is equal to A square minus A square by 4. We can transpose this on this side. इसके नीचे 1 करें. LCM you will get what? 4. So this is 4A square. 4 से 4 1 into A square. So this is आपको क्या मिला? A square over 4. So from here PM square is equal to this one. So PM will be equal to, you can take the square root of this one, so you will get root 3 by 2A because the length cannot be the negative, so that's why we are not putting plus and minus. क्योंकि length negative नहीं हो सकता इसलिए we are not going to put the plus and minuses here. तो it means हमको ये side कितना मिला? root 3 by 2A. We know this side. अब to find the value of sin 60, sin 30, tan 60, tan 30, cosec, sec, whatever, हम क्या करेंगे? We will take the help of this triangle now. And this is already we know the trigonometric ratio P B P over H H B. Perpendicular over hypotenuse is already you know that is the sine. Base over hypotenuse is cos. Base perpendicular over base is tan. इसका रेसिप्रोकल उल्टा करें. Base over this one is cot. This is your sec and this is cosec. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. टू लर्न दिस वन ओनली पीबीपी पंडित बद्दी प्रसाद हर बोले. दिस इज वन ऑफ द वे टू रिमेंबर दिस वन इज देयर. वी हैव द डिफरेंट एब्रीविएशन ऑफ द डिफरेंट पीपल. सब लोगों ने अलग अलग बना लेते हैं. तो एनी हाउ अब इस एंगल में जस्ट नाउ फॉर एग्जांपल इस एंगल के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी है. तो sin 60 एंड sin 60 के लिए फॉर दिस एंगल ये परपेंडिकुलर होगा. दिस ऑलरेडी बी डिस्कस इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल. acute angle opposite side is always treated as a perpendicular or this is your hypotenuse and this is base for this angle. तो perpendicular sin क्या होता है? Perpendicular over hypotenuse. तो suppose this sin 60 perpendicular क्या होगा? PM over hypotenuse is PQ. So sin 60 the PM is equal to what? root 3 by 2A or PQ is A. This is gone, so you are getting what? root 3 by 2. So it means the value of the sin 60 degree is equal to root 3 by 2. तो अगर कहीं sin 60 degree आता है तो उसकी जगह पे you can write down root 3 by 2 is here. Similarly, the other values you can find out. Cos 60. Cos 60 means base over hypotenuse. Base is QM. Hypotenuse is PQ. So this is A by 2 over A. Cancel. So this is 1 by 2. So value of cos 60 is 1 by 2. Similarly, tan 60, tan perpendicular over base, PM over QM. PM हमको कितना निकला?
root 3 by 2a over QM is a by 2. You can cancel, so root 3. So it means the value of the tan 60 is root 3. अगर कहीं tan 60 आता है, you can write down the value of that is root 3. Now you can take the cosec 60. Similarly, cosec 60 क्या हो जाएगा? Hypotenuse over perpendicular. Hypotenuse is PQ, perpendicular PM. So this is a over root 3 by 2a. This is cancel. इसका reciprocal 2 over root 3. Cosec होता है hypotenuse over perpendicular. तो hypotenuse over perpendicular. Similarly, cos का उल्टा sec 60. Sec is what? H over B means hypotenuse over base. तो hypotenuse is what? PQ. Base is QM. So hypotenuse is A over this QM is A by 2. This is cancelled, so you will get 2. Similarly, cot 60 base over perpendicular. So base is QM over perpendicular is PM. QM is A by 2 and this is root 3 by 2A. You cancel. This is 1 over root 3. So these are the values of sin 60. This one cos 60. This tan 60. Root 3. Cosec 60. This is sec 60. 2. Cot 60. 1 over root 3. These are the values are there. Have a look. Okay, now similarly, we can find the value of 30 degree for sine, cos, tan. For this angle 30 degree, in triangle PMQ you are taking. For this angle 30, this side, opposite side will be the perpendicular. This is base and hypotenuse. It's already we discussed. कि किसी भी right angle triangle में acute angle opposite side is always treated as a perpendicular. So look at here. So sine 30 will be QM over PQ. QM is A by 2. PQ is A. So this is sine 30. You will get A cancel 1 by 2. So value of sine 30 is 1 by 2. Similarly, cos 30 PM. PM is root 3 by 2A over PQ is A. So this is your root 3 by 2. So value of the cos 30 is root 3 by 2 direct. Tan 30 you can QM A by 2 over PM is root 3 by 2A. Cancel. So this is 1 over root 3. Value of the tan 30 is 1 over root 3. Cosec PQ. PQ is A over QM is A by 2. So this is equal to 2. You can cancel. Sec 30 PQ. PQ is A over PM is root 3 by 2A. Cancel. So this is just 2 over root 3. Cot PM is PM over QM. Base over this one. So base is root 3 by 2A over this is A by 2. Cancel. So this is root 3. So these are the values. So value of the sine 30 is 1 by 2. Cos 30 is root 3 by 2. Tan 30 is 1 over root 3. Cosec 30 is 2. Sec 30 is 2 over root 3. And cot 30 is root 3 is there. So have a look is there. Okay, now in case of the, you want to find out the 45 degree angle, the trigonometric ratios of 45 degree angle. So for 45 degree angle, we are supposed to take the isosceles right angle triangle. हमें क्या लेना है? Isosceles right angle triangle. तो right angle triangle है, that is an isosceles है. It means these two conjugate sides will be the equal. For this is 90, this will be the hypotenuse. So hypotenuse cannot be the equal. It means these two are equal. So अगर इसको मैं A मानूं, इसको A माने, this is 90. So these two angles will also be the equal. 45 each. Sum of the angles 180 as already you know that. तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाइए इन ट्रायंगल ABC. तो AC square is equal to AB square plus BC square. AB is we assumed A. This is A square plus A square, 2A square. So AC you will get root 2A. प्लस माइनस हम इसलिए नहीं पुट कर रहे हैं कि लेंथ कैन नॉट बी द नेगेटिव. लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई वी आर सपोज टू टेक द पॉजिटिव. रिमेंबर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. नाउ लुक एट हियर. साइन 45. तो साइन 45 आइदर यू आर टेकिंग फॉर दिस एंगल. आप इस एंगल के लिए लो या इसके लिए लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. बिकॉज देयर अपोजिट साइड्स आर ऑलरेडी इक्वल. परपेंडिकुलर इज ऑलरेडी इक्वल. सो नथिंग इज गोइंग टू चेंज एंड बेस इज ऑल्सो द सेम. तो लेट्स सपोज फॉर दिस एंगल, मैं इस एंगल को लेके एज्यूम करता हूं. फॉर दिस वन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मींस AB ओवर AC. सो AB is A, AC is A root 2.
cancel, so this is 1 over root 2. So the value of the sin 45 is 1 over root 2. So value sin 45 की क्या हुई? 1 over root 2 is there. Whenever you get the value sin 45, you can write down in place of that 1 over root 2. Cos base BC over hypotenuse AC, that is A over A root 2. Cancel, this is 1 over root 2. Here is you are writing the root 2 A or A root 2 is not the hardly matter. आप कुछ भी ले सकते हैं इसको, no problem at all. Tan 45 perpendicular AB over base BC, that is A over A. Answer 1. So value of tan 45 कितना हुआ? 1 is there. So whenever the tan 45 comes, you can write down 1. Similarly cosec क्या हो जाएगा? Hypotenuse over perpendicular. तो hypotenuse AC over perpendicular is AB. So this is root 2A over A. Cancel. So this is root 2. So value of the cosec 45 is root 2. You can take the sec. Sec is क्या होता है? Hypotenuse over base. Hypotenuse is AC over base is BC. So this is root 2A over A. This is root 2. Sin 45 by sec 45 is also root 2. Tan 40 you will take base over this one. So base is BC over AB. Both are equal. A over A is equal to 1. So these are the values of sin 45 this one. और ये ऑलरेडी बताया कि sin का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक. रेसिप्रोकल ऑफ cos is sec. रेसिप्रोकल tan of is cot is there. तो देखिए 1 over root 2 इसका रेसिप्रोकल, 1 over root 2 इसका रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल is already 1. So have a look this here. Okay, now next is the trigonometric ratios of 0 and 90 degree. इसको थोड़ा ध्यान से समझिए जरा. देखिए फर्स्ट वी आर टेकिंग द 0 डिग्री एंगल. सी अगर मैं साइन थीटा लेता हूं तो दैट इज द परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. वी आर सेइंग दिस एंगल आई एम टेकिंग थीटा, दैट इज एन एक्यूट आई एम टेकिंग इन दिस. इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को एक्यूट ले रहे हैं. तो ये हमारा क्या परपेंडिकुलर है, पी है. हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है. दिस इज योर बेसिस देयर ओनली. और पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये ध्यान रखिएगा दिस वन. अब नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी आर टेकिंग फॉर द एक्यूट एंगल. हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा एक्यूट एंगल के लिए लेते हैं. वी आर सेइंग sin थीटा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. वी आर सेइंग तो इसका मतलब वो एंगल थीटा जो है क्या है ना, एक्यूट है. अब नाउ यू वांट दिस थीटा शुड बी इक्वल टू 0. हमें क्या चाहिए? ये एंगल 0 चाहिए. अब देखिए ये एंगल थीटा, व्हेन दिस एंगल थीटा विल बी द 0. ये एंगल 0 कब होगा? जब ये पॉइंट C ग्रेजुअली नीचे आता जाए. देखो अगर मैं इस पॉइंट C को यहां ले आऊं, फिर इसको यहां लाऊं, एंगल रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है. आपका एंगल फिर ये हो गया, फिर ये हुआ. ऐसी सिमिलरली यहां पर आया, दिस इज ये एंगल इज थीटा इज, एंड ग्रेजुअली इफ दिस C इज गोइंग टू कोइंसाइड द विद C B. अगर ये C पॉइंट B पर आ गया, C पॉइंट अगर ये C पॉइंट B पर आ गया, C पॉइंट इज गोइंग टू कोइंसाइड द B. अगर C ने B को कोइंसाइड कर लिया तो हमारा एंगल थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. भाई देखिए इसको मैं सीधा इधर लाके रख दूं तो दिस एंगल इज 0 इज देयर. मींस आपकी जो इनिशियल साइड है, दिस यूज्ड टू बी इनिशियल साइड. ये इनिशियल साइड है. टर्मिनल साइड हमसे निकली थी, ये टर्मिनल साइड है. जब टर्मिनल साइड इनिशियल साइड को कोइंसाइड कर रही है, वो बाहर ही नहीं निकल रही है, तो दैट विल मेक द 0 डिग्री एंगल. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लेंथ ये CB था, मींस BC. BC क्या हो गया? BC तो हमारा ये लेंथ BC तो हो गया 0, और जो AC लेंथ थी वो बराबर किसके हो गया? AB के. AC बराबर किसके हो गया? AB के. दिस इज ये दो चेंज हुआ. ध्यान से C पॉइंट को आप ग्रेजुअली जैसे नीचे लाएंगे और इट इज गोइंग टू कोइंसाइड द पॉइंट P, देन दिस एंगल बिकम अ 0 बिकॉज वी आर गोइंग टू ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू रिड्यूस दिस एंगल. ठीक है ना? तो जैसे ये एंगल को इसको कम करते जा रहे हैं, 0 पर हो रहा है, तो ये C पॉइंट तो B पर आ गया. तो इसका मतलब ये लेंथ BC तो 0 हो गया, और AC लेंथ थी वो किसके बराबर होगी? AB के, बिकॉज दे आर गोइंग टू कोइंसाइड. ठीक है. अब इसमें जस्ट एंगल देखिए. अब देखिए साइन 0 डिग्री. साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो इस एंगल के लिए अगर मैं इस थीटा को मैं 0 ले रहा हूं, तो परपेंडिकुलर अगर इस एंगल थीटा के लिए लेता हूं तो परपेंडिकुलर क्या? BC है मेरा. भाई परपेंडिकुलर तो मेरा BC होगा इस एंगल साइन थीटा के लिए, है ना? थीटा वी आर टेकिंग द 0 एंड हाइपोटेन्यूज कितना होगा? AC. तो BC हमारा क्या हो गया? 0 हो गया. और AC तो कुछ भी हो तो 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 0 इज देयर.
तो साइन डिग्री 0 डिग्री मीन्स दैट इज 0, ठीक है ना। साइन 0 डिग्री मीन्स भाई देखिए अगर साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी ओवर एसी होगा, थीटा को एक सेकंड भूल जाइए, साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी ओवर एसी, बट नाउ दिस थीटा इज गोइंग टू बिकम ए 0, as that this theta is going to become a 0, this BC length is going to become a 0 because this C point is going to coincide the B point. C B को coincide कर रहा है तो BC 0 हो गया ना। Similarly, you can take the cos 0 degree. Cos क्या होता है? Base over hypotenuse. तो base क्या है? AB over hypotenuse is AC. लेकिन AB और AC both are equal हो रहा है जब ये एंगल 0 डिग्री हो रहा है। When this theta is going to become a 0, then this hypotenuse and base is going to equal. तो यह AB है, AC भी AB हो गया मेरे पास, इससे ये गया तो क्या हुआ 1, इसका मतलब cos 0 डिग्री क्या होगा 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली tan 0 लीजिए, tan 0 लेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC है, परपेंडिकुलर ओवर BC, बेस क्या है A B है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज AB, तो BC हमारा क्या है 0 है और AB क्या है हमारा कुछ भी होगा AB, तो किसी AB डेफिनेटली कुछ लेंथ होगी तो 0 डिवाइड बाय एनी लेंथ यू विल गेट द 0 इज देयर, दिस वाज सिंपल। अगर इफ यू आर टेकिंग द कोसेक 0 लेंगे तो क्या आएगा AC ओवर BC, तो AC हमारा AC इज इक्वल टू AB है, कुछ लेंथ होगा, लेकिन BC हमारा क्या हो गया BC 0 हो गया, तो किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे व्हाट यू विल गेट नॉट डिफाइंड, इट मींस द वैल्यू ऑफ कोसेक डिग्री इज नॉट डिफाइंड। देखिए वैसे भी इसका रेसिप्रोकल आएगा, इसके 0 1 करेंगे तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। सिमिलरली सेक करिए, सेक 0 डिग्री व्हाट यू विल गेट AC ओवर AB, ठीक है। अब AC भी AB के बराबर है और AB भी AB है, तो AB ओवर AB व्हाट यू आर गेटिंग इज इक्वल टू 1, इसका मतलब सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1। वैसे भी देखो कोसेक का रेसिप्रोकल 1/1 का 1 ही होगा। कॉट लीजिए, cos 0 cot 0 AB ओवर BC, AB हमारा क्या है AB है, BC 0, तो किसी वैल्यू को बिकॉज AB तो कुछ भी लेंथ रहेगा डिवाइड बाय 0, सो यू विल गेट अगेन द इन्फिनिटी इज हियर ओनली। सो दिस इज फॉर द 0 डिग्री। हैव अ लुक। ओके नाउ फॉर द 90 इज हियर, 90 के लिए यहां देखिए ध्यान से। नाउ दिस एंगल बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, दिस इज पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले रिमेंबर सी। अब नाउ दिस एक्यूट एंगल वी वांट इट शुड बी इक्वल टू 90, नो डाउट हम साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं ऑलवेज वी टेक फॉर द एक्यूट इज ऑलरेडी। अब नाउ यू वांट टू मेक दिस एंगल इज थीटा इज 90, हमको क्या करना है इस एंगल को 90 करना है, राइट। अब ये एंगल 90 कैसे होगा, इफ आई एम गोइंग टू ग्रेजुअली गोइंग टू चेंज द पोजिशन ऑफ दिस सी की पोजिशन में चेंज करता जाऊं, सी को अगर यहां ले आऊं लाइक हियर, तो देखिए ये एंगल बढ़ गया, दिस वन अगेन फिर इसको मैं यहां ले आया हियर, इट इज गोइंग टू इंक्रीज अगेन हियर। सिमिलरली सी पॉइंट यहां आया, दिस इज, एंड फाइनली क्या होगा ये सी पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर है दिस वन, तो दिस बी पॉइंट ग्रेजुअली इधर आ रहा है, बी पॉइंट क्या हुआ ए को कोइंसाइड कर जाएगा। जब व्हेन वी पॉइंट इज गोइंग टू कोइंसाइड ए, तो ये जो एंगल है ना दिस इज 90 हो जाएगा, तो एक्यूट एंगल बिकम नाउ 90 इज देयर। तो जैसे ये एंगल 90 हुआ तो ए बी हमारा लेंथ कितना हो गया, ए बी तो हमारा 0 हो गया, ए बी तो 0 हो गया, दिस लेंथ इज 0 हुआ। और बीसी जो है ना, बीसी ने क्या किया इस हाइपोटेन्यूज को ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे, तो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गए, दोनों मिल गया दिस वन, तो इट मींस व्हाट यू आर गेटिंग बीसी इज इक्वल टू एसी हो गया। देखिए जब इसको आप शिफ्ट करेंगे ग्रेजुअली इधर शिफ्ट करेंगे ऐसे, देखिए ऐसे 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 इसको ऐसे 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 करेंगे तो ये इधर बढ़ता जाएगा ये, तो बीसी इज गोइंग टू कोइंसाइड विद दिस एसी, एसी को हम ऐसा 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 बढ़ा रहे हैं, बीसी खिसकता आएगा इधर, राइट। ठीक है अब इधर देखो बीसी ओवर एसी, नाउ व्हाट विल बी द साइन 90, तो बीसी हमारा क्या है बीसी, तो बीसी है विद अस, एसी भी बीसी हो गया, तो इट मींस साइन 90 इज 1, ए बी 0 है, एसी एसी रहेगा, 0 को किसी नंबर से करेंगे 0, तो cos 90 0 हो गया, बीसी 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 है नो प्रॉब्लम, ए बी हमारा 0 रहा है, तो किसी वैल्यू को बिकॉज बीसी तो कुछ लेंथ रहा होगा, लेंथ रहेगा डिवाइड बाई 0, तो व्हाट यू विल गेट नॉट डिफाइंड,
AC ओवर AB, AC ओवर BC, तो AC AC है और BC भी AC है, तो ये क्या हो जाएगा 1। देखिए साइन का रेसिप्रोकल हो रहा है। यहाँ AC ओवर AB, AC बिंदास AC, लेकिन AB हमारा क्या 0 हो गया, तो किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे इंफिनिटी हो जाएगा। देखिए यू आर गेटिंग, बिकॉज 0 ओवर 1 है, इसका रेसिप्रोकल सेक होगा तो 1 ओवर 0 इनफाइनाइट हो गया। AB ओवर BC, AB 0 है एंड BC है ऑलरेडी, तो ये क्या होगा 0 ओवर एनी नंबर वैल्यू, तो दिस इज 0, so cot 90 is equal to 0. So these are the values for the sin 90, cos 90. Have a look. Okay, now how can you prepare the table? टेबल कैसे बना सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। टेबल कैसे बनाते हैं, इसका ट्रिक क्या है, आप पहले एंगल लिखो 0, 30, 45, 60, 90, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर लिखिए और सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो। पहले नंबर लिखो 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाई 4। उसके बाद जस्ट टेक द स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट लिया, ये इसका स्क्वायर रूट, दिस वन। इसके बाद इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो वैल्यू साइन की होगी, तो 0 ओवर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 0 ही आएगा, 1 ओवर 4 का लेंगे तो 1 ओवर 2 आएगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1 ओवर 2 ही, साइन 0 की वैल्यू 0, इसका लेंगे तो देखिए 2 और ये 2 तो 1 ओवर रूट 2, इसका रूट 3 बाई 2 एंड दिस इज 4 से 4 क्या 1, तो 1 का 1, तो दिस इज साइन 0 0, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1 बाई 2, कॉस 45 साइन 45 1 ओवर रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 90 इज 1। इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, पहले ये लिखो फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस 1 रूट 3 बाई 2, 1 ओवर रूट 2, 1 over 2 and 0. This is the value of cos. Cos 0, 1, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90. अब साइन को cos से डिवाइड कर दीजिए, you will get the 10. 0 over 1 डिवाइड करो, यहां क्या करें डिवाइड साइन बाई cos, you will get the value of 10. तो साइन को cos से करो 0 over 1 0, इसको करेंगे तो दिस इज 1 over रूट 3, 1 over रूट 2 डिवाइड बाई 1 over 2 इज 1, इसको करेंगे रूट 3 और 1 over 0 क्या होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड आ गया, दिस इज। अब इसका रिवर्स करेंगे तो आपको कॉट आ जाएगा, इसका रिवर्स करो इंफिनिटी रूट 3 1 over रूट 3 एंड 0, दैट इज कॉट इज देयर। अब सेक, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसमें रेसिप्रोकल ऑफ कॉस का रेसिप्रोकल उल्टा करो, देखिए 1 over 1, इसका रेसिप्रोकल 2 over रूट 3, इसका रेसिप्रोकल रूट 2, इसका रेसिप्रोकल 2, ये क्या 0 over 1, तो 1 over 0 करेंगे नॉट डिफाइंड। अब इसका रिवर्स करेंगे तो आपको कोशेक आ जाएगा, या इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, देखिए 0 over 1 1 over 0, वैसे तो इसका सीधा रिवर्स मारो 1 2 रूट 2 2 over रूट 3 2 over रूट 3 एंड 1 is here। इसका रिवर्स करेंगे ये दैट इज कोसेक। और वैसे भी देखिए इसका रेसिप्रोकल करें, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड आएगा, इसका 2 हुआ, दिस इज रूट 2 2 over रूट 3 एंड 1 is there। सो दिस इज द टेबल। तो इसको हम टेबल को इस तरह से सिंपल लर्न कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 लिखो, सब 4 से डिवाइड, स्क्वायर रूट लो, फिर साइन की वैल्यू आएगी, साइन की वैल्यू का रिवर्स करो, ये पहले लिखते हो, ये इस तरह से लिख दीजिए, कॉस आएगा, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 का रिवर्स मारेंगे कॉट आएगा, ठीक है। फिर सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, फिर इसको रिवर्स करेंगे, यू विल गेट द कोसेक। हैव अ लुक। दिल तुझे